Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our third unit, that is biodiversity. What does the term biodiversity means? The term biodiversity has been derived from bio and diversity. As you already know, bio means life. So diversity means variety. Variety within a species and among species. So term biodiversity has been derived from bio and diversity. Bio means life and diversity means variety. Variety within a species and among species. Biodiversity is a measure of the variety of organisms present in different ecosystems. Biodiversity एक measure है, एक variety है organisms की जो different ecosystems में present है. Diversity of plants, flora and animals, fauna in a region depend on climate, attitude, soils and the presence of other species. बच्चों डाइवर्सिटी जो एक रीजन में है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट पर, एल्टीट्यूड पर, सॉइल्स पर और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज. Biodiversity is not distributed evenly on Earth. It is richest in tropics. Temperate regions have many species while there are fewer species in polar regions. Biodiversity found on Earth today is the result of 4 billion years of evolution. The origin of life is not well known to science. The limited evidence suggests that until 600 million years ago, all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. बच्चों बायोलॉजी में ये बिलीफ है कि आज से कोई 600 मिलियन साल पहले तमाम लाइफ जो थी वो बैक्टीरिया और सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर थी. फिर इनमें एवोल्यूशंस हुई और 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन की वजह से आज जो लाइफ जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करी अर्थ पे वो रिजल्ट है 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस के लिए फूड्स प्रोवाइड करती है. अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज. बच्चों जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिनल ड्रग्स और वैसे ड्रग्स हैं, वो बायोलॉजिकल सोर्सेज से डिराइव होते हैं. अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट. जो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, फाइबर, डाइज वगैरह, ये हम डायरेक्टली प्लांट से ले रहे हैं. बायोडाइवर्सिटी जो है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम. इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई. इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, एटमॉस्फेयर, वाटर सप्लाई, इन सब की मेंटेनेंस में बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. बायोडाइवर्सिटी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है in recycling nutrients and providing fertile soils. Classification बढ़ते हैं बच्चों. What is classification, aims and principle? There is a large collection of very dissimilar forms of organism found on Earth. बच्चों अर्थ ज़मीन पर बहुत से organisms हैं और बहुत dissimilar forms हैं उनकी. Over 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plants are known to biologists. And these are only a small percentage of total types estimated to live on Earth. बच्चों जो एक टोटल लाइफ जो है हमने जो एस्टिमेट किया बायोलॉजिस्ट ने अर्थ पर, उसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन टाइप्स एनिमल्स की और 0.5 मिलियन टाइप्स प्लांट्स की बायोलॉजिस्ट को पता है. They range in complexity from one small and simple bacteria to large and complex human beings. अभी जो टाइप्स हैं ये रेंज करती हैं, कुछ बहुत स्मॉल हैं, कुछ सिंपल हैं और कुछ बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स हैं. Some of them live in sea, some on land, some walk, others fly and still others are stationary. इन ये डिफ़र करते हैं, कुछ पानी में है, कुछ समंदर में है, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं और कुछ स्टेशनरी हैं, रुके हुए. Each has its own way of life. हर एक का एक अपना तरीका है ज़िंदगी गुजारने का. That is getting food, avoiding unfavorable environmental conditions, finding a place to live, reproducing its kind. When there are so many diverse kinds of organisms,
It becomes difficult to learn about the characteristics of each. जब इतनी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में, जब बायोलॉजिस्ट ने इतनी डाइवर्सिटी फाउंड की ऑर्गेनिजम्स में, तो डिफिकल्ट है कि उनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लर्न कर सको. To study such a large collection, biologists classify the organisms into groups and subgroups, and for this task they require some system. अब इतनी बड़ी कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की, अब कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक मेथड है जिससे बायोलॉजिस्ट जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में. अच्छा, एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के? ये जो क्लासिफिकेशन की इसकी एम्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. बच्चों, वो ब्रांच बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन के साथ डील करी उसे कहते हैं टेक्सोनॉमी. एंड द ब्रांच विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सिस्टमैटिक्स. और बच्चों, वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन के साथ डील कर रही है और उसके साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी ट्रेस कर रही है, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स. बच्चों, दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. द मेन एम ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस आर टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दे कैन बी स्टडीड इजीली. बच्चों, एम क्या इन ब्रांचेस का? ताकि वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस डिटरमिन कर सकें इन ऑर्गेनिजम्स में, ताकि इनको स्टडी करना आसान हो जाए. टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म, ताकि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स फाइंड कर सकें. सो व्हाट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग्स्ट ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन जो है बेस होती है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में रिलेशनशिप पर. एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स. और इस तरह के रिलेशनशिप में सिमिलैरिटीज हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में. ये सिमिलैरिटीज सजेस्ट करती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है एक पॉइंट पर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस रखता है, रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल, कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल, स्पैरोज जो हैं मोर क्लोजली रिलेटेड है पिजन से, जबकि इंसेक्ट से इतने क्लोजली रिलेटेड नहीं है. इट मीन्स दैट फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज. मतलब कि स्पैरोज और पिजन्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज कॉमन है. जब बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो सिमिलैरिटीज़ जो हैं एक्सटर्नल और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो उनकी डेवलपमेंट की स्टेज से सिमिलैरिटीज़ पता चल जाती हैं. जो मॉडर्न जेनेटिक है वो क्या करती है, वो एक और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टेक्सोनॉमिस्ट को. ये जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं डीएनए में, ये यूज़ होती हैं फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. बच्चों, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सा. बच्चों, वो ग्रुप्स जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई होते हैं उन्हें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टेक्सा कहते हैं. टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की. टेक्सा एक लैडर मतलब एक सीढ़ी बनाता है. तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है. सो किंगडम लार्जेस्ट टेक्सोन है. On the basis of similarity, each kingdom is further divided into smaller taxa. सबसे पहले बच्चों जो है फाइलम है. फाइलम है डिवीजन प्लांट्स और फंजाई के लिए. फाइलम एक ग्रुप है रिलेटेड क्लासेस की. उससे ऊपर जो टैग्स है वो है क्लास. क्लास एक ग्रुप है रिलेटेड ऑर्डर्स का. सॉरी बच्चों, हम स्टार्ट से पढ़ते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से. सबसे पहले जो है स्पीशीज आती हैं. स्पीशीज में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फिर जीनस आता है. जीनस में रिलेटेड स्पीशीज होती हैं. फैमिली एक ग्रुप है रिलेटेड जेनरा, रिलेटेड जेनस का. और ऑर्डर एक ग्रुप है जिसमें रिलेटेड फैमिलीज होती हैं. क्लास एक ग्रुप है रिलेटेड ऑर्डर्स का. और सबसे टॉप पर आता है फाइलम, जो ग्रुप है रिलेटेड क्लासेस का. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन में देखें तो स्पीशीज है होमो सैपियन, जीनस होमो है, फैमिली होमोनिडाई है, ऑर्डर प्राइमेट्स हैं, और क्लास के ममेलिया. फाइलम क्या है? कॉर्डेटा. और किंगडम है एनिमेलिया. ह्यूमंस एनिमेलिया किंगडम में होते हैं. इसी तरह प्लांट्स हैं. किंगडम प्लांटी है, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास मैग्नीलोप्सिडा है, ऑर्डर फैबुलस है, फैमिली फैबेसी, जीनस पाइसम और स्पीशीज पाइसम सेटिवम है. सो बच्चों, स्पीशीज जो है ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का. स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन.
A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring. Species बच्चों organisms का एक group है जो कि freely interbreed कर सकते हैं और fertile offsprings produce करते हैं, but are reproductively isolated from all other such groups in nature. लेकिन reproductively ये isolate होते हैं तमाम group से. हर species की अपनी एक distinct structural, ecological और behavioral characteristics है. For example बच्चों हमने पढ़ा सबसे पहले genus, species, फिर genus, फिर family, फिर order, class, phylum and then kingdom. In the definition of species हम emphasize करते हैं in nature, क्योंकि जो दो organisms आपस में related हैं, to two different but closely related species वो under artificial conditions cross breed कर सकते हैं. मतलब unnatural process में वो infertile offsprings पैदा करेंगे. जैसे अगर क्रॉस कराएं मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का तो वो म्यूल खच्चर पैदा करेगा, लेकिन वो इनफर्टाइल होगा, वो फर्दर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता.